So hello everyone, as you all have read the title, so you all know what this video is going to be about. This video is going to be about my class 10 journey. So let me tell you what all topics I'll be covering in this video. So the first topic that I'll be covering is my academic journey. Then I'll tell you what emotional impact class 10 had on me. Also I'll tell you क्या boards इतने difficult है जितना सारे हमें बोलते हैं. पर पहली चीज़ right now I need to give my boards. I haven't given them. But अभी तक जितना मुझे लगता है I'll let you know that. Also I'll tell you what all mistakes I made in my class 10 so that you do not make them. So yes guys, let's begin with the video. So yes guys, before I tell you about my class 10 journey, उससे पहले you need to know about some ending. But ending किस चीज़ की? Ending of class 9. क्योंकि अगर आपको ending class 9 की पता नहीं होगी तो आपको class 10 की journey समझ नहीं आएगी. So, at the end of class 9, I lost many friends due to some reasons which were quite weird. But also, I think ये होना ही था एक point पे. So, it is good कि वो तब हो गया. So, I also feel कि जब तक we don't lose some people in our life, we won't gain some new people in our life. So, I guess it's good to lose people. Because those people bring experiences जिनको हम lose करते हैं and जो नए लोग आते हैं वो भी नए experiences लाते हैं तो I guess life is all about experiencing different people and different things. So we should accept at some point that losing people is okay. I know it affects a lot, but we need to move forward. And I'm telling you, whenever we lose someone, we get someone really good. So we should take it in a positive way always. So that's all I had to tell you about my class 9. So अब हम आ जाते हैं class 10 की beginning पे. So on the very first day I was absent because I was out of station due to some family reasons. So उसके बाद जब सबका second day था but मेरा first day था. So उस दिन I was very excited but also I was very nervous because I had lost almost every friend. So I was quite nervous that what I'll be doing and with whom I'll be sitting in lunch breaks, also inside the classroom. So yes, I was very nervous, but yes, there was this one girl who has been with me since my childhood. So हम इतने close नहीं थे जब हम छोटे थे, like we were just acquainted. But yes, with time हम close हुए भी थे, but उसके बाद फिर वापस distance आ गया था. But if I talk about class 10, तो class 10 की beginning से लेके class 10 की ending तक this girl was with me. And yes, I am telling you कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारी लाइफ में present होते हैं but हम उन्हें इतनी importance नहीं देते, हम उन्हें इतना देखते नहीं हैं. But I am telling you, the people who are with us since the very beginning, हमें उनके साथ हमेशा रहना चाहिए because I guess those are the people जो हमारी लाइफ में बहुत सारी happiness लाते हैं. And also जो लोग हमें important feel करवाते हैं, जो लोग हमें prioritize करते हैं, we should always be with those people and we should never take them for granted. So yes, तो ऐसे मेरी class 10 begin हुई and also मैंने भी आप सभी की तरह class 10 के start में कई सारी resolutions बनाई थी. My very first resolution was very common. वो ये थी कि मैं अपना सारा काम हर रोज़ करूँगी. जो भी मुझे स्कूल से होमवर्क मिलेगा I'll be completing it every day. एंड जो भी मैं स्कूल में पढ़ूँगी वो मैं घर जाके पक्का रिवाइज करूँगी. बट इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं हुई तो कोई बात नहीं. एंड मैं इसे रिग्रेट भी नहीं करती क्योंकि आई थिंक कि देयर इज़ नो पॉइंट होल्डिंग रिग्रेट्स. इट्स बेटर दैट यू नो योर मिस्टेक्स. सो इसके बाद हमारे आ जाते हैं यूनिट 1. सो आई नो कि आप सबको पता होगा यूनिट्स क्या होते हैं बट मैं फिर भी बता देती हूँ. सो यूनिट साल में 2 या 3 बार होते हैं. ये 20 मार्क्स के पेपर होते हैं. एंड यूनिट 1 में बहुत कम सिलेबस आया था, लाइक मुश्किल से आधे चैप्टर. तो उसमें आई थिंक एवरीवन स्कोर्ड क्योंकि कितना ही मुश्किल हो सकता है आधे चैप्टर में स्कोर करना. तो येस, एवरीवन डिड स्कोर वेल. आई ऑल्सो स्कोर्ड वेल. उसके बाद केम द बेस्ट पार्ट ऑफ क्लास 10. सो दैट वॉज द स्कूल पिकनिक. Yes guys, it was the school picnic. Also I'll tell you one thing right now. मैं अपनी जर्नी शेयर करने से पहले, अपनी पिकनिक की जर्नी शेयर करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि
whether you have friends or you don't have any friends, you must go to the school picnics and you also must go to the school trips. एक चीज़ बोलूँगी, अगर पेरेंट्स एग्री कर रहे हैं ना तो जाओ, क्योंकि चाहे तुम्हारे दोस्त बने या ना बने, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग सम न्यू एक्सपीरियंसेस. एंड यस, मैं बता रही हूँ कि बहुत चांसेस है कि अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है सो यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स, एंड अगर तुम्हारे दोस्त है सो यू विल मेक न्यू मेमोरीज. सो यस गाइज, इफ आई टॉक अबाउट माई स्कूल पिकनिक, सो इट वॉज अ वन नाइट स्टे एंड उसमें आई वॉज शेयरिंग रूम विथ 3 अदर गर्ल्स. एंड उसमें से एक लड़की तो वही थी जिसके साथ मैं साल की बिगिनिंग से थी, एंड जो बाकी 2 लड़कियाँ थी उनके बारे में आई हैड हर्ड अ लॉट. ऑल्सो मुझे एक और चीज़ पता थी उनके बारे में, उनका नाम, या उसके अलावा मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था. आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, बट ऑल्सो टिल सम पॉइंट आई वॉज लाइक कि भाई पता नहीं मेरी पिकनिक कैसे होने वाली है, क्योंकि मैं उन लड़कियों को ही नहीं जानती थी. तो मैं थी भाई पता नहीं क्या होएगा. बट yes, I'm a very frank person, I'm a really extrovert person. So पिकनिक की एंड तक हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि जान पहचान से ज़्यादा हमें एक दूसरे के बारे में थोड़ी थोड़ी रियल चीज़ें पता लगने लगी. एंड रियल इन अ गुड वे, क्योंकि हमें काफ़ी सारे रूमर्स पता थे एंड ऑल्सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें खुद ही अज्यूम कर ली थी एक दूसरे के बारे में सुन सुन के. सो जब तक स्कूल की पिकनिक एंड हुई तब तक हमें एक दूसरे के बारे में थोड़ी थोड़ी रियलिटी पता चली. तो मैं बस यही बोल रही हूँ, जब हमें लगता है ना कि हमने अपनी लाइफ का कोई बेस्ट पार्ट खो दिया है या हमने अपनी कोई बेस्ट फ्रेंड खो दी है, सो उसके बाद आई एम टेलिंग यू, उसके बाद आते हैं असली लोग हमारी लाइफ में जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं. अब आप ये सोचोगे कि मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये 3 हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंट्यूशन, एंड माई इंट्यूशन सेज दैट दीज पीपल आर गोइंग टू स्टे फॉर एवर. बाकी डेफिनेटली यू विल बी हैविंग माई फर्दर व्लॉग्स, तो आपको डे टू डे पता लग ही जाएगा दैट व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ. सो देन आई लेट यू नो कि ये लोग है कि नहीं, बट माई इंट्यूशन सेज दैट दे विल स्टे फॉर एवर. सो आफ्टर दैट वी बिगिन with the second exams of the year. So yes guys, on half yearly exams में I scored fine, but I'll tell you this one thing, मैंने end में पढ़ना शुरू किया and मैंने score ठीक ठाक कर लिया. But I'm telling you this one thing, that we might score well at the end, but we have a lot of pressure because of which we become stressful. So मैं बस इतना बोलूँगी कि अगर तुम्हें ये सारा स्ट्रेस चाहिए तो तुम एंड में पढ़ सकते हो. अगर तुम्हें लगता है यू कैन हैंडल स्ट्रेस, सो डेफिनेटली तुम एंड में पढ़ लो. बट इफ़ यू थिंक दैट तुम्हें स्ट्रेस्ड नहीं होना है बिल्कुल भी, सो आई एम टेलिंग यू दैट बी कंसिस्टेंट. सो जैसे जो मेरा स्कूल है उसमें कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि डांस कंपटीशन, डिबेट्स, फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स कंपटीशंस होते हैं, और भी कई सारी चीज़ होती है. सिंगिंग कंपटीशंस जूनियर्स में होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें, आर्ट एग्जीबिशन होती है साल के एंड में, और कई सारी चीज़ होती है एनुअल फंक्शन. So yes guys, I'll just tell you that you must participate in at least some of these activities. Let me tell you this one thing. If you feel that you know how to do something, or if you feel that you want to know how to do something, then you must participate in these activities. In any of these, जिसमें भी तुम्हें लगता है तुम्हें इंटरेस्ट है या तुम करना चाहते हो. Let me tell you, ये सोच के मत डरो कि क्या तुम कर पाओगे या फिर क्या रिजल्ट आएगा, क्या तुम जीतोगे, क्या तुम हारोगे, या बाकी सारे तुम पे हंसेंगे. ये बिल्कुल मत सोचो. ना ही ये सोचो कि तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, नो वन हैज़ इनफ कॉन्फिडेंस. इट्स जस्ट दैट व्हेनेवर वी पार्टिसिपेट वी ब्रिंग समथिंग बैक विद अस. फर्स्ट चीज़ जो हम अपने साथ लाते हैं वो होती है एक्सपीरियंस, एंड दूसरी चीज़ जो हम अपने साथ लाते हैं वो ये होती है कि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लाते हैं. So after this we come to the unit 2. तो unit 2 में I think कि मैंने मौज मस्ती काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दी थी, and I focused a bit less on studies because I was more focused कि मुझे class 10 में fun करना है. Also मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि class 10 is the best class, so I also wanted to make this my best class. ऑल्सो गाइज मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि कुछ बेस्ट क्लास नहीं होता, स्कूल ही क्यों होता है. ओके गाइज, आई जस्ट टेल यू कि कोई भी चीज़ बेस्ट हमारे पास नहीं आती तैयार होकर, हमें बेस्ट बनाना पड़ता है. वी नीड टू मेक आवर ओन बेस्ट मेमोरीज, बेस्ट क्लास एंड अदर बेस्ट थिंग्स.
हमारे पास कभी कोई चीज़ चल के नहीं आएगी. वी नीड टू क्रिएट आवर ओन. सो अगर तुम्हारी क्लास 10 बेस्ट नहीं थी या तुम किसी और क्लास में हो, वो क्लास तुम्हारी बेस्ट नहीं थी, सो मेक श्योर तुम अपना अगला साल बेस्ट बनाओ. आई नो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है विच शुड नॉट हैपन एंड जो तुम्हारा साल ख़राब कर देती है काफ़ी हद तक, बट वी ऑलवेज हैव अ चांस कि वी कैन इग्नोर ऑल द नेगेटिविटी, वी कैन बी पॉजिटिव एंड मेक श्योर दैट वी try to bring some things which make us happy and which help us to make things best. So yes guys, I'll just tell you, be positive and फिर जो भी तुम करोगे, जो भी तुम चाहोगे, वो best बन जाएगा automatically. So as I was talking about Unit 2, so Unit 2 में इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किया मैंने क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करी, but I think I do not regret it at all because I think having fun is very important. क्योंकि ये जो टाइम है, स्कूल टाइम है, ये कभी वापस नहीं आएगा, हम सारे सुनते आ रहे हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को रियलाइज़ हो गया इस पॉइंट पे कि ये जो स्कूल लाइफ होती है बेस्ट होती है. एंड मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बेस्ट होती है बिकॉज बेस्ट इज़ येट टू कम, बट आई विल ऑलवेज से दैट स्कूल लाइफ इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू विल एवर एक्सपीरियंस. सो या मैंने ये जान लिया था तो इसलिए मैंने अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया. एंड मैंने थोड़ा स्कोर कम किया बट कोई रिग्रेट्स नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारा फन किया. उसके बाद आ जाते हैं प्री बोर्ड्स. सो प्री बोर्ड्स में मैं इतना बोलूँगी कि पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था. कुछ क्वेश्चंस थे ट्रिकी बट मैं बोलूँगी पेपर वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट. बट डेफिनेटली जो चेकिंग थी वो बिल्कुल लीनियंट नहीं थी, दैट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. एंड आई थिंक कि जो स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है प्री बोर्ड्स में दैट इज़ फॉर आवर गुड, क्योंकि इससे हमें अपनी सिली मिस्टेक्स पता लग जाती है. जो टीचर्स होती है वो हमें आज तक मार्क्स देती हुई आ रही होती है लेकिन प्री बोर्ड में वो अच्छे से मार्क्स काटते हैं ताकि हमें अपनी मिस्टेक्स पता लगे और हम बोर्ड में वो रिपीट ना करें. सो आई थिंक वो अच्छी बात है. एंड मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर तुमने प्री बोर्ड में इतना अच्छा स्कोर नहीं भी किया है ना, सो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि जितने हमारे प्री बोर्ड्स में मार्क्स आते हैं बोर्ड्स में हमेशा उससे ज़्यादा ही आते हैं. पहली चीज़ तो हमारे पास 2 महीने होते हैं पढ़ने के लिए, और दूसरी चीज़ बोर्ड्स की चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है, पर जितने प्री बोर्ड्स में मार्क्स करते हैं आई डोंट थिंक उतने बोर्ड्स में करते हैं. बाकी मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने भी अपने बोर्ड्स देने हैं, बट येस डेफिनेटली आई फील कि ऐसा ही होता है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू. सो इसलिए डोंट गेट डिसहार्टेंड इफ यू लॉस्ट मेनी मार्क्स इन प्री बोर्ड्स बिकॉज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर रियली वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स, सो यू डोंट हैव टू वरी. एंड ऑल्सो जब मैं प्री बोर्ड्स के जब मुझे आंसर शीट मिली थी तो उस टाइम पे I did this one thing. I carried a sheet of paper with me क्योंकि हमें अपनी आंसर शीट्स घर के लिए नहीं मिलती, हमें बस मार्क्स दिखा देते हैं. एंड इफ़ इन केस कहीं पे कोई मार्क्स गलत मिले या ज़्यादा मिलने चाहिए थे तो वो हम मैम से रीचेक करवा सकते हैं. सो मैं अपने साथ एक शीट ऑफ पेपर ले गई थी एंड उस पर आई नोटेड एवरी क्वेश्चन जो भी मैंने गलत किया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स तो ऑलरेडी थे मेरे पास. सो इसलिए मैंने एक उस शीट पे नोट कर लिया कि ये वाला क्वेश्चन मेरा इस सब्जेक्ट में गलत था एंड ये वाला इस सब्जेक्ट में गलत था. येस मैंने सारे क्वेश्चंस में नोट नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था, बट जितने हो सके उतने मैंने नोट कर लिए. ऑल्सो इफ राइट नाउ यू हैव योर क्वेश्चन पेपर्स सो डेफिनेटली यू कैन चेक देम एंड तुम एक बारी उस पर देख सकते हो कि तुमने क्या क्या गलतियाँ की थी. अगर तुम्हें याद है तो भी उनको सर्कल कर लो ताकि तुम वो मिस्टेक्स बोर्ड में रिपीट ना करो. ऑल्सो जो मेरी मिस्टेक्स थी जो मुझे जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे थे दैट वॉज द ह्यूमन आई चैप्टर. अब तुम सोचोगे कि भाई द ह्यूमन आई चैप्टर तो सबसे इजी चैप्टर था फिजिक्स का. येस यू आर राइट अबाउट दैट, बट मुझे ये याद ही नहीं रहा कि द ह्यूमन आई में न्यूमेरिकल्स भी थे जो पढ़ने थे. तो मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट करके चली गई एंड मैं भूल गई कि बैक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स भी दिए थे एंड थोड़े से एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने थे. मुझे तो ये याद ही नहीं था कि न्यूमेरिकल्स एग्जिस्ट भी करते हैं द ह्यूमन आई में. तो मैं चली गई एंड उसके आए थे 2 क्वेश्चंस, 1, 2 या 3 आई डोंट नो, एंड आए थे वो 2-3 मार्क्स के. तो उसमें मैंने अच्छे खासे मार्क्स लूज़ किए. तो इसलिए जब मुझे अपनी आंसर शीट मिली तो अगले दिन जब मैंने अपने मार्क्स वगैरह लिख लिए थे तो अगले दिन मैंने सबसे पहले क्या किया घर आके, मैंने ये किया कि जो ह्यूमन आई चैप्टर था मैंने उसको पढ़ा. अब आप ये सोचो कि मैंने इतनी जल्दी क्यों पढ़ा, लाइक अभी आंसर शीट मिली है एंड अभी अपने मार्क्स पता लगे तो उसके अगले दिन ही कौन पढ़ता है. येस यू आर राइट, बट एक चीज़ बोलूँगी, जिस चैप्टर में सबसे ज़्यादा गलती हुई थी ना, अब मैं उस चैप्टर को लेकर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ. क्योंकि जब एक बारी हम अपनी गलतियाँ करेक्ट कर लेते हैं सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग एंड इससे हमारा डर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है. सो आई गेस
दैट्स व्हाट आई डिड. सो मैंने जो मेरा सबसे ज़्यादा वीक चैप्टर था मैंने उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया एंड उससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया. सो आई जस्ट टेल यू, जो भी तुम्हारा सबसे ज़्यादा वीक चैप्टर है, ट्राई कि तुम उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर लो अभी कि तुम में कॉन्फिडेंस आए एंड फिर तुम्हें बोर्ड से डर कम लगेगा ऑटोमेटिकली. सो गाइज, वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड ऑन इज दिस कि क्या मुझे बोर्ड्स का प्रेशर है. मैं सच बताऊं तो मैंने पूरे साल बोर्ड्स इतना ज़्यादा सुन लिया है कि अब मुझे बोर्ड्स की टेंशन ही ख़त्म हो गई है. बिकॉज मैं सोचती हूँ कि बोर्ड्स कितने डिफ़िकल्ट हो गए. एग्ज़ाम ही है, बुक से ही आएगा, जो पढ़ा है वही आएगा, बुक के बाहर तो नहीं आ जाएगा. सो यस, आई थिंक मेरा जो बोर्ड्स का फियर था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है. मुझे इतना डर नहीं लग रहा है बोर्ड से. बिकॉज आई थिंक जितना हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो चीज़ वैसी हो जाती है. बिकॉज आई डू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. सो आई डेफिनेटली बी पॉजिटिव अबाउट इट कि बोर्ड्स आर गोइंग टू बी गुड, दे आर गोइंग टू बी ईजी एंड वो बुक से होएंगे. तो डेफिनेटली मैं बुक पढ़ के जाऊँगी, तो जितना आएगा वो मैं कराऊँगी. So I think it's all about perspective, so just be positive. So yes guys, the 5 lessons that I learned from my class 10 was कि पहली चीज़, never ever miss your first day of school. क्यों? क्योंकि उस दिन काफ़ी सारे फ्री पीरियड्स होते हैं, क्योंकि कहीं टीचर्स नहीं होती है तो इंट्रोडक्शन में काफ़ी टाइम चला जाता है. एंड या तो पहला दिन तुम टाइम पास कर सकते हो, तुम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो. सो येस, आई गेस पहले दिन स्कूल चले जाया करो क्योंकि उस दिन मज़े ही होते हैं, उस दिन ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होती. सो येस, पहली चीज़ मैंने ये सीखी कि मुझे अपना फर्स्ट डे कभी मिस नहीं करना है. दूसरी चीज़, नो मैटर हाउ मेनी फ्रेंड्स वी लूज और हाउ मेनी फ्रेंड्स वी हैव, वी मस्ट गो टू द स्कूल ट्रिप्स एंड स्कूल पिकनिक्स बिकॉज वी विल गेट न्यू एक्सपीरियंसेस. तीसरी चीज़ कि वी मस्ट पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि हम अपने साथ एक्सपीरियंस लाएंगे और अगर एक्सपीरियंस ही लाएंगे तो एक्सपीरियंस के साथ ट्रॉफी, सर्टिफिकेट या फिर मेडल लाएंगे. सो आई गेस इट्स अ विन ऑन दी ईदर साइड्स. उसके बाद द फोर्थ थिंग दैट आई लर्न कि जो प्री बोर्ड्स है उसके मार्क्स से कभी डिसहार्टेन नहीं होना है बिकॉज वी कैन ऑलवेज स्कोप बेटर. एंड ऑफकोर्स तुमने एक चीज़ जो प्री बोर्ड्स में पढ़ी, अगर अब तुम वो सेम चीज़ बोर्ड्स में पढ़ोगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव तो हो ही जाएगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. एंड पांचवी चीज़, दैट मेक श्योर यू हैव फन. नो मैटर इन विच क्लास यू आर, बट यू मस्ट हैव फन बिकॉज तुम्हें अपने ग्रेड्स याद नहीं रहेंगे पूरी लाइफ, बट तुम्हें डेफिनेटली ये याद रहेगा कि तुमने किस क्लास में सबसे ज़्यादा मज़े किए थे. वो मेमोरीज हमेशा याद रहेगी क्योंकि वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है. जबकि जो ग्रेड्स है वो किसी को भी याद नहीं रहेगा, ना ही टीचर्स को, ना ही पेरेंट्स को और ना ही तुम्हें. सो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऑलवेज हैव फन नो मैटर वॉट. सो येस गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Also, if you found that this video was relatable, so you must have a visit to my channel, and also I'll be uploading more relatable content like this. So please tap on the subscribe button. Also click on the like button, and yeah, that's it for the video. Stay tuned.